So today we need to cover that means competitive intelligence gathering, guys. This module. Okay. So anyone is know about that means competitive intelligence gathering? What does it mean exactly? And guys, if you do not, that means completed your backlog. So I have one idea for you how you can that means completed your backlog. Because if you want to that means complete your backlog, then you need to do one thing. You need to just go with this slide. If you don't have any slide, that means this slide you can ask me for, that means over the WhatsApp I can show you, and you need to just go with the slide and you can just read that means topic. And if you just read the topic, then you can just watch the video. And once you will read the topic and you will watch the video, then you will know. And if you are not able to that means get any kind of that means topic, then you can do one thing. You can book a one session with me, guys, for today and tomorrow as well. Okay. So it is the best opportunity to gather the that means knowledge about that means from your backlog. And if your backlog is not completed, then please guys do the same, because I'm here to help you guys. But you need to also that means understand that things. If you are that means spending a single penny, that means if you're spending a lot, that means your money, so you have that means you should learn something. Okay. So that is why I'm saying, if you want to learn something, if you want to gather the something, if you want to grab any opportunity, then you need to that means complete a backlog, so that you can that means go with the other slide as well. Okay. So what is that means competitive intelligence gathering? Okay. I'm just telling you that means first one is market analyze and social media analysis. I will tell you in that means later, but I would like to tell you in that means first competitive intelligence gathering. Okay. So what does it mean, guys? If you are that means gathering any information, okay, just an example, market analysis if I talk about. So if we are going to that means gathering any that means information, just like collecting information about your competitor legally or ethically, to understand their strategies and technologies, services and business plans. Okay. Only public source, no hacking involves here. Okay. So it comes to the competitive intelligence gathering. So public source, how I can use. So just an example, I'm showing to you 1 minute. Actually, just an example, as I that means come with the youtube.com and I just open any video. Just an example for the example. Okay. Just open that video. Just an example like this. Um, like this. Okay. Then I just put the URL of this video. Okay. And that video, and I'm just going to paste over here, and it is my that means link where I can just know about that means any video, that means where it was and what it was exactly. So I am using that this means tool. 1 minute. Yeah, the tools actually I'm using. Yeah, I'm just going to copy over the chat. You need to use the same tool, guys, along with me. Okay. So here I'm just going to that means share that means a link of YouTube, and either you can also share from your own, and you need to just put it over here. Okay. And then you need to just submit it. So it will take a time. 1 second. Now you will get the result about the video. Here you will get the result of lots of that means result you will get. Okay. So here you will get that published Wednesday 15 November 2023, when it was that means published. Okay. And the category is 27, which means education, and en means English, and audio language is also English, that means English. Okay. The video id is this like this, it is that id. Okay. Internally it was used basically. So here you will that means get the lots of that means lots of location, that means things to that means of the video. Okay. So you can that means gather the more information any video from here. Okay. So यहाँ पे आपको thumbnail भी मिल जाता है, guys. A lots of thumbnail is also available, and some archive files is also then you can see here. Okay. So here you will get the lots of details about any target, any from the video. Okay. So you can use it, and you can also that means use the channel keywords which is using that means like this. Okay. So it is tool which is publicly available. So if you doing that things, then the target person was not knowing, right? उसको नहीं पता चल रहा है कि आप उसको target कर रहे हो, right?
बट आप उसके बारे में जांच पड़ताल निकाल लो, बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल। सो यही ये बोल रहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, सो अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो हम क्या करेंगे, ओनली पब्लिक सोर्सेज, नो हैकिंग इन्वॉल्व इसमें होगा। इसका पर्पस क्या होगा, अंडरस्टैंड कंपिटिटर स्ट्रेटेजी। इसमें हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उनकी कंपिटिटर की स्ट्रेटेजी, कि वो न्यू सर्विसेज कौन सी ला रहा है, प्रोडक्ट क्या लॉन्च कर रहा है, लाइक दिस। फिर उसको एनालाइज करेंगे हायरिंग ट्रेंड से, कि मतलब भैया कि वो क्या क्लाउड एक्सपर्ट का यूज कर रहा है, या मतलब किस चीज का यूज कर रहा है, लाइक दिस। ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइस, सभी को क्लियर है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। Guys, it is clear. Please be on mic so that I can move to the another topic. Market analyzers. So what is means of market analysis here? It means study the current market trends, कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है भाई, एंड कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज की वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। व्हाट पीपल आर बाइंग, कि वो क्या खरीद रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द मार्केट, कि भैया जैसे मान लो मैं कोई दुकान खोलने वाला हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं कोई दुकान खोलने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले उसको एनालाइज करूंगा कि किस दुकान का मतलब चल रहा है ज्यादा, किस दुकान की यहाँ पे नीड है ना, और कौन सा दैट मीन्स प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो सकता है, और कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज डिमांड में है अभी, है ना, और इसकी क्या कंपटीशन इसके आगे जाके हो सकता है। तो ये सब चीजें अगर मैं उसको एनालाइज करके चलूंगा, दैट इज व्हाई आई कैन दैट मीन्स यूज माय मार्केट, एंड आई कैन दैट मीन्स यू आई कैन दैट मीन्स ओपन माय दैट मीन्स शॉप ऑल्सो, राइट। सो एग्जाम्पल, अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, मार्केट एनालिसिस विल टेल यू कि वो क्या क्या एनालाइज करूं मैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑन अ गूगल, राइट, आई विल दैट मीन्स find it first of all. Then what kind of certification are trending, that means which certification is that means trending in, like the CompTIA and CH, like this, okay. Then how many competitors are offering similar courses, because there are lots of competitors, okay. So how they are that means offering the similar course, I just want to know first of all. And what price and ranges, okay, which price of range they will provide. They will provide 80,000, 90,000, but we are providing 6,000. Why? Because we also that means doing some that means social work here, okay. So that kinds of things, we comes to the market analysis, then we comes to the social media analysis, guys. सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जैसे कि प्ले फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर, एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑडियंस इज टॉकिंग अबाउट, कि मतलब आपकी ऑडियंस किसके बारे में बात कर रही है। व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर पोस्टिंग, कि आपके कॉम्पिटिटर, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग विद द Amazon, देन इन फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज, दैट मीन्स वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, what they are posting, so I need to just take care of it so that I can understand कि competitor वाला मेरा क्या कर रहा है। which content is working well, कि भैया उनका कौन सा content चल रहा है, then I can also that means मैं भी वो content बनाऊं, I can also be a make same content, so that my content will also that means working fine, right। so what hashtags और topics are trending, कि कौन कौन से hashtags and topics trending में है, ठीक है। Suppose example, I have example, I am just telling to you. Suppose you run a training institute like a Vidyant Info System. Okay. So, and you want to promote your CH course. Just an example, cyber security and ethical hacking course. Okay. So you are going to the social media analysis, or what hashtag people use, like just like ethical hacking hashtag, CH hashtag, cyber security training hashtag, like this. Okay. So check competitor pages. I'm just going with the competitor pages, and आई एम जस्ट गेटिंग दैट मीन्स डिटेल कि इतने इतने सारे हैशटैग अभी अवेलेबल है, और वो मेरे कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है, सो आई एम यूजिंग द सेम हैशटैग, ओके, एंड फाइंड आउट द व्हाट स्टूडेंट आर आस्किंग इन अ कमेंट, एंड क्रिएट दैट मीन्स कंटेंट अराउंड दैट। कि मैंने देखा उनके उस पे जाके, वेबसाइट पे मैंने जाके देखा कि स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं, और उसी को ही मैंने क्या करा, उसकी सेम कंटेंट मैंने बना दिया। सो इट्स कम्स टू द कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि हम उसके यहाँ से, जैसे हमारा कॉम्पिटिटर है, उसके यहाँ से हम कौन से कैसे कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इट्स कम्स टू द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। Please be on mic, everyone, and tell me if you have single doubt, then you need to ask. Please. And my pitch and paste is that means not too much fast. I hope so. Guys, be on mic and tell. Safi, Vishnu, you both are here. Then please let me know if my pitch and paste is that means
Good, not too much fast. Tell me, guys, are you there? I'm audible. Ajay, I'm audible. Yes, sir. You're audible. Okay, so why is not that means replying? I guess they are not Safi, interested. Safi, are you there? Vishnu, I think doing some our job also, so they Yes, will sir. not Yes, that sir. means tell. There. Yeah. So yeah, please reply, Yes. Safi. If you not understanding, then please reply. So do Sure. you Sure. understand the Okay. topic? Okay. Yes, sir. Okay. Yeah, please reply because how I can know कि आपको समझ में आ रहा है ना? So footprinting through a social networking site, guys. So another topic, footprinting through a social networking site. How we can do this? Okay. Okay. So how we can do this? It is a process of gathering information about an individual organization or a specific target using data publicly available on social media platform. Okay. So how we can do this, guys? How we can find real life example? I'm also telling. So what is footprinting through a social media network site? I am just telling to you guys. इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना एक किसी पर्सन का या किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर ऑल यूजिंग पब्लिकली इंफॉर्मेशन लीगल एंड एथिकल ओके तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड हम क्या क्या देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टाइप में उसकी ईमेल आईडी देख सकते हैं उसका फोन नंबर देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन देख सकते हैं उसकी वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स देख सकते हैं हॉबीज एंड लोकेशन देख सकता है लाइक दिस ओके सो रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको जस्ट एन एग्जांपल टारगेट मेरा एक एबीसी टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या विद्यांत इन्फो सिस्टम है मेरा तो मैं क्या करूंगा लिंक्डइन पे जाके सर्च करूंगा उस कंपनी के बारे में उसके एम्प्लॉयज को फाइंड करूंगा ठीक है एंड मैं क्या करूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर एक तरह का तैयार करूंगा उसके बारे में और जांच पड़ताल करूंगा लिंक्डइन पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाइक दिस ठीक है अब इसको हम कैसे दैट मीन्स इसके बारे में हम क्या ईमेल कैसे इसका फाइंड करें कि इसकी हमें एक हिडन ईमेल मिल जाए तो उसके लिए मैं अपना कमांड यूज करूंगा गाइज नाउ इट्स मूव्स टू द कमांड गाइज फॉर द हैंड्स ऑन ओके सो आई एम यूजिंग दैट कमांड कि मुझे हिडन दैट मीन्स वो कैसे मिल जाए दैट मीन्स ईमेल आईडी ओके सो आई एम यूजिंग द कमांड कंट्रोल एल first of all so that it that means clear my that means icon so here I'm using guys control L again and I'm just using my that means द हार्वेस्टर कमांड तो हार्वेस्टर कमांड क्या होती है गाइस हार्वेस्टर कमांड एक ऐसी कमांड होती है जिसमें मैं क्या कहते हैं हिडन ईमेल्स और सब डोमेन्स फाइंड कर सकता हूं ठीक है तो यहाँ पे मैं हार्वेस्टर कमांड यूज कर रहा हूँ गाइस क्यों क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे एक ईमेल मतलब फाइंड करना है ऐसी ईमेल जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ठीक है सो अगर अवेलेबल भी है तो हम उसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते लाइक दिस सो the harvester hyphen d then I put the intellipart.com I can just vidyantinfosystem.com vidyant infosystem.com okay vidyantinfosystems.com infosystem.com okay vidyantinfosystem.com and then hyphen b and then all safi you need to also that means put the same command okay आपको भी ये कमांड पुट करनी है और रिजल्ट देखना है कि सेम आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं ओके Okay, sir. Yes, um sir. या मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ उस पे आप उसको यूज करिएगा 1 minute chat use the same command and tell me what result are you getting. Yeah, it is searching. Okay, so here you will get the details about the that means email or employee's name or any IP address you will get from here. Okay, so do the same command and let me know if you are getting that means any error. Open हो रहा है. Okay, great.
सर ओपन नहीं हो रहा सर। ओपन नहीं हो रहा? क्या ओपन नहीं हो रहा? काली लिरिक्स? जी सर कल नहीं सर, वो कमांड सर रन नहीं हो रहा सर इसमें सर। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयर करना एक बार। ओके सर मैं आप स्क्रीन शेयर करो। यस सर ये हुआ सर। यस, यस हो रहा सर। है। अब आप एक काम करो, कमांड डालो दी, THE, टी एच नॉट PHE, इट्स टी एज एन टैंगो। या टी टी एच हाँ, सर। हाँ टी THE। एच हाँ ओके देन सर ना। एच, एच कैपिटल ला लो, एच कैपिटल, एच फॉर हेनरी। हाँ, यस सर। AR, ए आर वी, बी। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। ओके 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 वी वी हाँ, ES, टी एस TER, TER, then ओके space, then hyphen D, not hyphen D, हाइफन डी yeah, then space, then you need to ऑल put the that means company name Vidyant Info System, VI, पी आई DH, DH, टी DH, जी एच हाँ YA, वाई it's H. Actually, I'm not able to see the H. It was, yeah, with H, जी YA, NT, नो, Y के बाद H नहीं आएगा, और ये आपने गलत लिख दिया। जी वाई सर वाई ए वाई ए एन जी सर एन टी, जे हाँ टी एच नहीं बस विध्यांत, फिर उसके बाद इन्फो, INFO, नहीं स्पेस नहीं देना, उसी पे ही इन्फो सिस्टम्स, देन एस SYS TEM डॉट सिस्टम कॉम। हाँ सही है, सही है, सही है, वहाँ ऐसा आएगा बस, इन्फो सिस्टम, या राइट, infosystem.com, infosystem.com, ओके, SYSTEM, ठीक है, एंड स्पेस, देन स्पेस एक ही बार देना है, आपने ज्यादा तो नहीं दिया, ठीक है, एक ही बार दिया ना स्पेस। जी हाँ सर हाँ, ठीक है, हाइफन बी, हाइफन डी ऑल देन ऑल, ग्रेट, ओके सर। रनिंग है, यस सर। या, ठीक है। सो अब अपनी ओके स्क्रीन आप हटा सकते हो, ओके, बिकॉज इट्स रनिंग नाउ, या। So here I'm using the same command again from for biz learning. Okay, bizlearning.com. सर लोकल सर्वर पे जाने के लिए सर क्या है इसका कमांड वगैरह, कैसे जा सकते हैं सर? लोकल सर्वर मतलब, जैसे कि आपको नेटवर्क पे जाना है, जी सर नेटवर्क पे जाना है। थ्रू द पोर्ट नंबर आपको जाना पड़ेगा, पहले जी स्कैन सर करना थ्रू पड़ेगा थ्रू nmap। हम्म। तो जी सर थ्रू उसके लिए भी पोर्ट। कमांड मैंने आपको बता रखी है पहले प्रीवियस क्लास में, अगर आप वो देखोगे, पहले आपको पोर्ट स्कैन करना पड़ेगा, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ एक पोर्ट ओपन, Hello, देन, इन मैप से सर। हाँ nmap hello, इसकी Shubham कमांड sir. चाहिए। जी जी, जी Hello, विष्णु। Shubham sir. Could you do same thing with my screen? I am sharing my screen. Yep, sure, please share your screen, guys. Yep, I'm stopping my screen now, you are going to share your screen. Yep, share. Can you see my screen? Yep, yeah, it is visible. Actually, allow some time, actually it was just running. Yeah, open your terminal now. Yeah, you can put the control shift plus plus, then your, that means icon was enlarge, will enlarge, sorry, बड़ा हो Control जाएगा वो। plus plus. Control shift plus, yeah, and you can do control plus, yeah, हो गया, and then you can do what, you can just, that means आप इस पे क्लिक करो और उसको बड़ा कर लो आप, ठीक है। सो डी विद्यांत इन्फो सिस्टम लाइक दिस, इसको बड़ा करो आप पहले,
यहाँ क्या से जाके। इसको बड़ा करूँ? हाँ मतलब इस पे वो है ना, ऑप्शन आ रहा है देखो, एक मिनिमाइज करने का ऑप्शन आता है और उसके बाद जूम करने का आता है, वहां पे क्लिक करो। ये जो क्रॉस आ रहा है आपके ऊपर बना हुआ, ये क्रॉस, क्रॉस के ऊपर जाके इसको जो बगल में है उस पे इसके नहीं क्रॉस नहीं करना, उसके बगल वाले को क्लिक करना था, ताकि वो पूरे उस पे आ जाए विंडो पे। इसको इस पे जाओ, इसके बगल वाले पे, क्रॉस के बगल वाले पे। ये पूरे स्क्रीन पे लाना है ना हमें, तो क्रॉस के बगल वाले पे जाओगे तो वो आता है ना बड़ा करने वाला, उस पे क्लिक कर दो। अभी आपने जिससे काटा था ना उसी पे ही, उसके बगल पे जो आ रहा है ऑप्शन, ये, ताकि पूरा विजिबल हो जाए सबको अच्छी तरीके से। आवाज आ रही है विष्णु? आई थिंक विष्णु नेटवर्क वाज डाउन आई थिंक। सर व्यू में ऊपर जाके कर सकते हैं सर, वहाँ से हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक व्यू पे जाके अगर आप कर दें। एडिट के बगल में सर व्यू, वहाँ पे जाने के बाद फुल स्क्रीन का आता है वो ऑप्शन। व्यू पे आता है फुल स्क्रीन, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रॉस के बगल में जो है वहां से हो हाँ जाता सर है। जी। हेलो। जी सर। हाँ सो विष्णु आपका नेटवर्क आ गया, सो आप क्रॉस के बगल वाले पे क्लिक करो, ये जो क्रॉस अभी आपने किया था उसके बगल वाले पे क्लिक करो जस्ट। या आई एम क्लिक। नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। एक्चुअली नो भाई। मैं कह रहा हूँ फुल स्क्रीन पे करना है आपको, फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपका ये जो बगल, क्रॉस के बगल में है इसको, हाँ ये इसको क्लिक करो। आपका नेटवर्क शायद थोड़ा स्लो है। यस। नाउ पुट द कमांड द हार्वेस्टर स्पेस हाइफन डी, स्पेस स्पेस हाइफन डी। विद विद्यांत हम्म। info system देन स्पेस नहीं डॉट कॉम नहीं डॉट कॉम, या देन स्पेस माई हाइफन बी, हाइफन बी ऑल। देन ऑल, Vidyant Info System, 1 minute, vidyantinfosystem.com, then space hyphen B, space, please put a space after B. Now hit enter. It is working now. It is working, I hope. नहीं, after putting the command there is a lots of message, and what is the meaning of these messages? Actually, it is going to scan your all the, that means sites, just like Google, Yahoo, DuckDuckGo, like this. Okay, so it is just scanning the site so that they can just that means after scanning they will provide you the data which you want. Okay, so it is internally scanning. After that means you are using, just an example, SSL. SSL is a port number. Then it's that means 443 is also that means scanning. So it's that means scanning some ports. You are just an example. You can see the search yahoo.com. So it is scanning over the Yahoo website. So okay, so once you will get the result, then it will show to you. Okay, but after that, if I'm sharing my screen, so it is clear, so that I can share my screen, Vishnu, if you don't mind, Yeah, or you yes, need to ask there is anything. there is another message also seeing Hmm. that is could not contact DNS SE. What is the meaning of this message? This message is that means defined as domain name system. DNS stands for domain name system, and it is just tell to you could not contact with DNS. It is showing if you are that means working with that means any network, so it was not that means impacted over that means DNS domain name system कि वो कि DNS पे नहीं ले जा पा रहा है. That is why it's trying to that means come as SSL through the SSL port number, and it is just trying to give you that result. But DNS, that means domain name system, was that means stopping, and it was showing could not contact. Actually वो establishment नहीं बिठा पा रहा है DNS से, but they will show you the result if any that means email is live and any that means subdomain is live. Okay, Okay, so do okay. not worry. I have another question, and the question is, where can I see that my VMware workstation is connected with network? You can do one thing. You can put you can right click over the Kali where the Kali is just like Here is a Kali. mentioned. Yeah, home. You can so see the home screen, and then in the that means no, there was not. In above the terminal Kali is just like showing to you, right? Yeah.
and that means बगल में जो काली है वहां पे जाओ, काली पे जाओ एंड देन पुट द राइट क्लिक ऑफ द माउस, राइट क्लिक करो माउस का, काली पे जाके ये जो काली दिख रहा काली, है इस पे ये जाके काली राइट है। क्लिक करो। हाँ होम है, होम है, होम के बगल में जो काली है उसी काली पे राइट क्लिक करो। हाँ, उसी पे किया मैंने काली पे, लाइक राइट क्लिक। हाँ, आपका वो थोड़ा नेटवर्क इशू है तो हमें शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इट इट इज नहीं, शोइंग लेटर। इसमें ऑप्शन आ रहा है, क्लोज टैब है, पावर टैब है, पॉज वगैरह आ रहा है, एसएसएच, हम्म। स्नैपचैट, शॉर्ट उसमें कैप्चर्स, सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग्स आ रहा है। हाँ सेटिंग्स पे क्लिक ऑन सेटिंग्स। हाँ, हमें सेटिंग्स आपकी क्लिक हो स्क्रीन गया। दिख नहीं रही, हमें आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, सो आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। देन सेटिंग पे जाने के बाद ऑप्शन बताओ क्या क्या आ रहा है। सीडी डीवीडी करके कुछ आ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, हार्डवेयर में ऑप्शंस आ रहे हैं। हार्डवेयर में डिवाइस है एंड समरी है, डिवाइस में मेमोरी है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है। हाँ आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है, आप मतलब आपका इंटरनेट नहीं शायद जा रहा है बार बार, तो इसलिए आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है तो। यही इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। ओके नॉट एन इशू। आपका स्क्रीन एक्चुअली अगर आई एम दिखे नॉट तो मैं कुछ एबल हेल्प टू कर आई पाऊँ। एम एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू लॉग इन ऑन एनी गूगल या अनदर नेटवर्क। ओके मतलब सो यू प्रॉब्लम है कैन गो इसमें। विद द सीडी, सीडी में जाओ, यू कैन क्लिक ओवर द सीडी एंड डीवीडी। सीडी एंड डीवीडी, यप। एंड आफ्टर सीडी एंड डीवीडी क्लिक, एंड व्हाट कैन आई डू? सो वो क्या दिखा रहा है आपको उधर, उस पे किस पे ब्रिज पे There is दिखा रहा a है क्लिक। there is device status status which is connected that power on. Okay, you can do one thing. You can open your Firefox. Yeah, after command prompt, that means command prompt के just बगल में Firefox just Here like is show a to you. Firefox. Yeah, Firefox वो जो आग सा जल रहा है ना, वही वही वही, उस पर हाँ क्लिक हाँ करो। हाँ, एंड कर देन दिया। या इसके बगल पे ये जो दूसरा टैब है उस पे ओपन करो, प्लस पे क्लिक करो और दूसरा टैब चालू करो। ठीक है। एंड देयर इज अ दूसरा टैब यूट्यूब। या हाँ, कर दिया। यू यू कैन सर्च यूट्यूब नाउ। हाँ आपकी स्क्रीन बट धीरे धीरे दिख रही है। जस्ट बट चेक इट इज योर नेट लोडिंग, इज not open yet. ओके। And the error message is disconnected. The network connection has been disconnected. Okay. Then you need to do one thing. Yeah, network connection has been disconnected. Actually, Yes. your network was gone. एंड एक्चुअली आपका एक तो नेटवर्क स्टेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यू कैन डू वन थिंग। आप जैसे ही काली पे क्लिक करोगे, जस्ट एग्जांपल आई एम हाँ टेलिंग टू यू, आई एम जस्ट ओपन माय काली एंड एज आई डू द सेटिंग्स, ओके मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा। देन सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं जाऊंगा सीडी एंड डीवीडी पे, एंड हाँ। नॉट सीडी डीवीडी, आई विल गो विद द नेटवर्क अडेप्टर, सॉरी। नेटवर्क अडेप्टर पे मैं जैसे जाऊंगा नेट पे, ठीक है, वो सीडी एंड डीवीडी के नीचे ही है, ठीक है हाँ, नेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका, आप मुझे ये बताओ कि क्लिक किस पे कर रखा है आपने, ये ब्रिज पे कर ब्रिज, रखा है, होस्ट पे ब्रिज, कर रखा है। ब्रिज। ब्रिज को हटा के आप नेट पे कर दो एक बार। एनईटी। हाँ नेट पे करो एंड देन ओके कर दो। ओके। And एक बार आप ओपन करके देखो, चलेगा, देखते हैं। इट इज ओपन और नाउ, ट्राई बट अगेन। but still it is not working. Okay, please, that means do again. It might be possible there was some, that means issue. Actually, it is also that means happening with the DHCP. That means like the server, DHCP server. So you need to just fix it by the manually. But do not worry. Just click it. If it is not happening, then we will, that means connect after that means class. Okay, so that we can fix it. There is again the message is we are having a trouble finding that site. Okay, it was not showing to us, but yeah, not an issue. I will, that means connect after the class so that I can just, Okay, that okay, means okay, okay, remove that okay. error. Okay. I will connect you after the class. You Sure, sure, can sure. continue the class. Sure, sure, sure. Thanks a lot. Thanks a lot, Vishnu. So I will connect you the separately. So now I'm going to move another, that means a slide of my, that means today's module, guys. So here I'm not getting any details. Okay. So if any emails found, that means if any subdomain, actually the subdomain was not that means created of the visual learning, that is why I'm not getting. But if any subdomain that means agar hoga is liable, then I will get the details from here. Okay, so I hope this command, that means you understand which command which I'm using. So
इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज इट्स पर्पस? द हार्वेस्टर कमांड इज यूज फॉर द दैट मींस फाइंडिंग IP एड्रेस and finding an email address like this. Okay, just an example, if I just doing again, I'm just using the same command again for the any that means other online that means platform. Just an example, I'm putting that means any URL of this. Okay, and just hit enter, then let's see what result I'm getting. Okay, so here I will get the result if I'm not wrong, because आई सी, मैं जानता हूँ कि इनका कुछ है, दैट मीन्स मेल आईडी, सब डोमेन्स मेल आईडी है इनकी और आईपी एड्रेस भी है, देन आई विल श्योरली गेट द रिजल्ट. सो आप इस कमांड से किसी भी दैट मीन्स टारगेट का आप आईपी एड्रेस पता लगा सकते हो. ठीक है, दैट मीन्स और आप सब डोमेन्स भी फाइंड कर सकते हो थ्रू दिस कमांड. ओके, सो now I'm just going to move my that means slide so that I can show you after some time if it is done. So my slide is now footprinting through the social network site. So as I already told you, we can use the Google Docking or as well. How we can use the Google Docking, guys? Google Docking, if I want to use, then I can just need to put that command, that means that means site, and then I just put the Amazon. If Amazon, if I want to, that means amazon.com, and then file type docs, just an example. So here I am getting the whole details about the docs file. I'm getting the docs files only, if you see. And if I'm not wanted to docs file, then what I can do, I can do the PDF. I want to go with the PDF, then I can search with the PDF. Here I will get the lots of detail about the PDF. Only PDF slide, it is just coming. I hope it is clear, guys, to everyone. It is clear. PDF sites I'm just getting. Okay, now if I want to just log in, that means that means that means login page, if I want to get, then Amazon login page I'm getting here. I just put the Amazon in URL login, then here only the login page is available. I hope it is clear. It is showing the that means Google Docking skills. Google Docking क्या होता है guys? Advanced searching over the Google. ठीक है, नॉर्मल सर्चिंग जैसे हम करते हैं, तो वो उसको अगर हमें अच्छी तरीके से करना है, इट्स कम्स टू द गूगल डॉकिंग. ठीक है, सो ये आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज. नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग अ सोशल नेटवर्क ग्राफ्स. सो हियर वी विल गेट द रिजल्ट गाइज. सो हियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस मिल गया. नाउ इट इज वर्किंग फाइन. आईपी एड्रेस मिल गया एंड मुझे कुछ होस्ट मिल गए जो कि इसका इंटरनली होस्ट है, लाइक दिस. ठीक है, सो हियर आई एम गेटिंग द रिजल्ट ऑल्सो if it is up. ठीक है, तो आप you can use this command and you can that means find that means admin privilege. Here you can see the admin in that means मेल आईडी वीएल, दैट मींस इन एडमिन, दैट मींस वेब पेज आई एम जस्ट कमिंग. ठीक है, जो एडमिन लोग इसको यूज करते हैं, सो आई एम गेटिंग दैट पेज आल्सो. ठीक है, सो हिडन फाइल्स वी कैन यूज फ्रॉम देयर. ठीक है, थ्रू दिस कमांड. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मूव विद माय अनदर स्लाइड, कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग द सोशल नेटवर्क ग्राफ्स गाइस. ठीक है, ये क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग द सोशल नेटवर्क ग्राफ्स, हाउ कैन वी कैन एनालाइज दैट मींस एंड सोशल नेटवर्क ग्राफ्स. सो अ सोशल नेटवर्क ग्राफ्स इज अ डायग्राम that show how people on entitles are connected to each other. Just an example like that, कि अगर मैं एक तरह का, मैं जस्ट एग्जांपल एक तरह का मैं जैसे कि मैं किसी से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा? जस्ट एग्जांपल, अगर मेरा लैपटॉप है, मेरे को लैपटॉप को अगर कनेक्ट करना है, तो मैं किसी भी केबल के द्वारा उसको कनेक्ट करूंगा लाइक दिस. ठीक है, सो सोशल नेटवर्क ग्राफ्स विजुअलाइज रिलेशनशिप ऑफ कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और एंटिटीज. ओके, so simple example I'm just saying, let's say you are analyzing a LinkedIn data of a company. ठीक है, आपकी विद्यांत इन्फो सिस्टम कंपनी है और आप एनालाइज कर रहे हो लिंक्डइन का डेटा. आपने पाया कि अरुण सर वहां के दैट मींस एक सीईओ है. ठीक है, जो कि दैट मींस पोस्टेड ऑफिशियल इंटरनल दैट मींस वो हमेशा पोस्ट करते हैं कुछ अपने लिए अपने बारे में. ठीक है, या फिर अपनी कंपनी के बारे में. तो आप क्या कर रहे हैं? आप एनालाइज कर रहे हैं सोशल नेटवर्क ग्राफ्स को कि आपने देखा कि उनके पे मतलब कितने वो पोस्ट पे कितने लाइक आई है. ठीक है, कितने लोगों ने उनके पोस्ट पे विजिट किया है. तो दैट काइंड्स ऑफ थिंग इज कम्स टू द कंस्ट्रक्टिंग एनालाइजिंग सोशल नेटवर्क ग्राफ्स, कि आप उनके ग्राफ चेक कर रहे हो कि कितने मतलब एनालाइज कर रहे हैं. अगर विजुअलाइजेशन पे जाओगे तो वहां पे ग्राफ का ऑप्शन भी आ जाता है कि आप ग्राफ में देख सकते हैं. अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं अपने, तो उसमें ग्राफ का ऑप्शन आता है कि कितने लोगों ने आपका विजिट किया. लाइक द सेम, ये सेम ही है कंस्ट्रक्टिंग एनालाइजिंग द सोशल नेटवर्क ग्राफ्स. इट इज क्लियर गाइज? Vishnu and Safi, it is clear to all of you guys? Vishnu, it is clear? I hope I'm audible. Safi?
Guys, you all are there or not? Hello. हाँ जी सर, हेलो। Yeah, Yes, it please. is clear. Yeah, please respond, guys. Because if you're not responding, then I'm not going with the another slide. So now tools and footprinting through a social network side. So what does it mean? So we have some sites just like Meltego. Meltego क्या होता है? एक powerful graphical link analysis tool होता है जिसमें हम क्या करते हैं relationships between a people, email and domains of a social media and more. ठीक है, ये क्या होता है? एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग मैप हाउ पीपल्स आर कनेक्टेड ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, and how that means it is also show the relation between the emails or website or phone number. Okay, just an example, अगर हमने क्या करना है, मेल्टिको की वेबसाइट होती है गाइस, इस पर हम जा सकते हैं. जस्ट एग्जांपल, I'm showing that means the harvester command actually I already. So harvester command is also we are using the same which I already told you. ये command होती क्या है कि एक तरह की line used होती है command जिसमें हम क्या करते हैं email और name और subdomain हम क्या करते हैं find करते हैं. ठीक है, अभी मैंने just आपको show किया कि email और name और subdomain मैंने find किया. ये रही मेरी IP address guys, IP address मुझे मिला और यहाँ पे मुझे कुछ emails मिल रही हैं. देखो ये रही that means ये और ये www.intellibat.com like this है ना, कुछ मुझे subdomain मिल रहे हैं. ठीक है, so like this. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हार्वेस्टर कमांड का यूज करके मैं उनके बारे में डिटेल्स निकाल सकता हूँ गाइस. ठीक है, कि कैसे कैसे कुछ कुछ सब डोमेन्स होंगे तो वो चीजें मुझे मिल जाएगी. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्पाइडर फूट एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट दैट मींस टूल है जो कि ऑटोमेटेड एंड रिकंसाइलेंस टूल के लिए यूज होता है. ये क्या करता है, डार्क वेब एंड सोशल नेटवर्क को क्या कहते हैं बताता है. ठीक है, ऑटोमेटेड ये बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, वो चल क्या रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल सेंसिस, इफ आई टॉक अबाउट द सेंसिस, सेंसिस क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है जो कि वेबसाइट को कनेक्ट करता है इंटरनेट से लाइक सोडान. ठीक है, और यूजफुल सोशल फुटप्रिंटिंग व्हेन कंबाइन द मेटा डेटा, और आपको उसके बारे में बताता है. जैसे कि सोडान की बात करूं मैं, सोडान, ठीक है, सोडान डॉट IOU, ये एक तरह का टूल है जिसको हम यूज करते हैं गाइस. और यहाँ पे हम जैसे कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे कि जस्ट एग्जांपल कैमरा कंट्री डॉट इन, सो यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाएगी जितने भी हमारे इंडिया में कैमरा चल रहे हैं कहाँ कहाँ पे, उसके सारे के बाद हमें सब सारी डिटेल्स मिल जाएगी विद IP एड्रेस लाइक दिस. ओके, यू कैन ऑल्सो दैट मीन्स यूज दैट मीन्स सोडान. आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू द लिंक गाइस. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको डिटेल्स मिल गई है. ओके, so you are that means using that link as well. I'm just sharing. Okay, so like this you can that means search by your own Meltego, the harvester and Spiderfoot, the tool. If you are not getting, then you can just connect with me, I can tell you. Okay, so I'm just going to move the website footprinting. What does it mean, website footprinting? If you want to that means gather the knowledge about that means website footprinting, so just you need to focus more there from, because I'm going to start from the beginning level. Okay, so what is website footprinting guys? इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट के बारे में अगर आप कुछ जान रहे हैं, अगर आप वेबसाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इट्स कम्स टू द वेबसाइट फुटप्रिंटिंग. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर वेबसाइट फुटप्रिंटिंग रेफर्स टू द एनालाइजेस द टारगेट ओवर द वेबसाइट. ठीक है, कि अगर आप कलेक्टिंग अ पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेबसाइट और अ वेबसाइट सर्वर, दैट मींस वेब सर्वर, टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, और अगर आप कोई वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं ओवर द वेबसाइट, तो इट्स कम्स टू द वेबसाइट फुटप्रिंटिंग इन ए इजी वे. ठीक है, it is clear I hope. Now I move to the website footprinting using a web spider. ठीक है, ये वेब स्पाइडर क्या होता है गाइस? ठीक है, कि अगर मुझे क्या करना है, वेब स्पाइडर और वेब, इसको क्रॉलर्स भी बोलते हैं, क्रॉलर्स, तो ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होता है दैट नेविगेट वेबसाइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दिस, so how we can do this guys, so we can just use it direct, that means just now I'm showing the example as well. so इसमें क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं इसमें होता क्या है. वेब स्पाइडर क्या होता है, वेब स्पाइडर एक तरह का, इसे हम बोलते हैं वेब क्रॉलर. ठीक है, ये एक ऑटोमेटेड टूल होता है जो वेबसाइट को विजिट करता है और उसके हर पेज की जानकारी इकट्ठा करता है. ठीक है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है हिडन पेजेस को ढूंढने के लिए किया जाता है, वेबसाइट स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए किया जाता है, या फिर ईमेल्स या लिंक्स या फाइल स्क्रिप्ट को निकालने के लिए किया जाता है. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, मुझे अगर इसका कमांड रन करना है, देन आई नीड टू जस्ट फर्स्ट इंस्टॉल दैट कमांड httrack. ठीक है, जस्ट एग्जांपल, आई पुट द कमांड httrack install. You can just install it. You need to give the root privilege here.
So it is going to just install and you need to just yes. ठीक है. Then I put the URL, that means command httrack. 1 minute guys, allow me 1 minute. Sorry guys, I'm getting the call of, that means my friend, one of the friends. So yeah, so sorry for this actually. So yeah, I'm just put any URL, any project, that means URL, just example. So here we are going to the path and we need to just decide that, that means set that path. Okay. So I'm just using, that means that path, and we can just find. Okay. So here it is the base path. It was just showing the base path. And here if we want to, that means put that 1 minute. I'm just doing enter the URL, spread the blank spaces. Okay. I need to just put the space here. Vidyant systems. So here we are getting the result mirror web like this. Okay. So here we are getting this like the result, just get the files indicated like this. So I just want to quit because I don't want to go with this. So I'm just showing you the such demo like this. So I am going with my module guys. So you can do the same command, you can use the same command and you will get the result. If you want to go with the proceed, then you can put the 1 so that you can go with the proceed. I just want to quit it because I don't want to show you, because it will come to the next slide also. ठीक है, वो आगे आएगा. So guys, I'm just going internet, that means archive. What is internet archive guys? इंटरनेट अर्काइव क्या होता है? इंटरनेट अर्काइव एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप क्या कहते हैं, द इंटरनेट अर्काइव, दैट मींस archive.org इज अ डिजिटल लाइब्रेरी. ठीक है, एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी होती है दैट कैप्चर्स एंड स्टोर स्नैपशॉट ऑफ वेबसाइट ओवर द टाइम. ठीक है, ठीक है गाइज, कि अगर आप इंटरनेट अर्काइव की बात करें तो एक तरह का ये लाइब्रेरी होता है. ठीक है, जिसमें आप इंटरनेट अर्काइव या फिर वे बैक मशीन का फ्री ऑनलाइन टूल होता है जो कि दुनिया में लगभग सभी वेबसाइट को पुराने वर्जन को सेव करके रखता है. आसान भाषा में अगर बात करूं कि अगर किसी वेबसाइट का आज कोई पेज डिलीट हो गया है, ठीक है, या डिजाइन बदल गया है, तो आप वे बैक मशीन की मदद से उसका पुराना वर्जन देख सकते हैं. ठीक है, ये सब चीजें होती है. सो नाउ वी आर मूव टू द अनदर स्लाइड. That means hands on, you will hands on, that means do with the, that means in a upcoming session. So I will show you actually my the another, that means instructor, that means Jatin sir will teach you hands on part also. ठीक है, ये अपकमिंग उसमें आएगा मॉड्यूल में. सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू, दैट मींस टीच यू टुडे ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट एंड लिटिल बिट प्रैक्टिकल एज वेल. ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाए और वो भी, और पर हैंड्स ऑन आपको जतिन सर कराएंगे. ठीक है, सो नाउ ईमेल फुटप्रिंटिंग. What is email footprinting guys? Email footprinting क्या होता है कि if you want to gather the knowledge about the, that means email, any email. ठीक है, so you will do the email footprinting. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Email footprinting is the process of gathering information about the email or server. ठीक है, email address and email communication pattern associated with the target. ठीक है, आसान भाषा में बोले, अगर हम किसी ईमेल का हेडर चेक करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि ईमेल कहां से भेजा गया था,
जस्ट एग्जांपल आईपी एड्रेस, कौन से मेल सर्वर ने यूज हुआ है, किसने भेजा, फ्रॉम में जाके देख सकते हैं, किसको भेजा गया, जी टू पे जाके देख सकते हैं, और कौन सा सॉफ्टवेयर ईमेल क्लाइंट पे यूज हुआ, हम ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम हेडर को एनालाइज करते हैं, उसके कंटेंट को देखते हैं, और मेटा डेटा जो उसके अंदर डेटा डाला गया है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो आपको पता ही है कि ईमेल कैसे भेजा जा सकता है, या फिर ईमेल में हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बाद मैं जाऊंगा नहीं। देन वी नीड टू मूव द टूल्स फॉर ईमेल ट्रिकिंग। ठीक है, टूल्स फॉर ईमेल ट्रिकिंग में हमारा क्या है, मेटा डेटा एनालिसिस टूल गाइस। व्हाट डज इट मीन? सो पहले क्या है, टूल्स ईमेल ट्रिकिंग, तो हमारे पास चार मेथड है गाइस। पहला है हमारा क्या कहते हैं, ये टूल मेटा डेटा एनालिसिस टूल, देन हमारे पास है ईमेल ट्रिकिंग टूल्स, देन हमारे पास है ये तीसरा क्या कहते हैं, ईमेल हेडर एनालिसिस, देन हमारे पास है कंटेंट एंड अटैचमेंट एनालिसिस टूल। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड इट। क्या होता है कि यहां पर ईमेल ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल होते हैं वो क्या होता है, कैटेगराइज तरीके में बताया जा रहा है। ठीक है, कि पहला कि टूल्स ईमेल जो ट्रिकिंग है इजी वे में, वो पहली बात करें मेटा डाटा एनालिसिस टूल का, इसके अंदर ईमेल के अंदर जो छुपी हुई डिटेल्स निकाली जाती है, ठीक है, सेंडर की आईपी या फिर क्लाइंट डिटेल्स या मेल पाथ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और इसमें हम डिटेल्स निकालते हैं उसको, और फिर उसके बारे में हम बताते हैं कि मेटा डेटा एनालिसिस टूल ये हुआ है। ठीक है, नाउ ईमेल ट्रिकिंग सर्विसेज क्या होती है? ईमेल ट्रैकिंग सर्विसेज होती है कि ऑनलाइन टूल्स जो आपको बताएगा कि ईमेल ओपन हुआ है या नहीं, कैस कौन सा डिवाइस आपने यूज किया हुआ है और ओपन हुआ है, अगर इसको कैसे भी कौन से डिवाइस के यूज करके ये ओपन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताता है ईमेल ट्रैकिंग सर्विसेज की कौन सा डिवाइस हमने यूज किया है। जैसे एग्जांपल, अब आपने स्टूडेंट को आपने ईमेल भेजा, आप देख सकते हैं कि उसने कब ओपन किया और किस लोकेशन से ओपन किया, लाइक दिस। ठीक है, नाउ ईमेल हेडर एनालिसिस ये क्या करता है, ये रॉ ईमेल हेडर को पेस्ट करके, ये टूल्स हेडर को ब्रेक डाउन करके ये क्या करता है, रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है। ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट में कैसे, जैसे एग्जांपल बताता हूं, आपने कोई सस्पिशियस ईमेल आया आपको और हेडर को एनालाइज में डाल दिया, आपने एनालाइजर में डाल दिया। ठीक है, देन आप यहां से पता करेंगे कि भैया ये सर्वर यूज में है, ये मतलब सस्पिशियस तो नहीं है, तो आप इसको एनालाइज करके देखेंगे कि भैया ये सही है, तो आपने हेडर से उसको एनालाइज कर लिया, अगर उसमें लिखा होगा वार्निंग, देन यू नॉट नीड टू ओपन, आप उसे ओपन ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो बेकार यूज है, दैट मींस बेकार यूज के लिए है। नाउ वी मूव टू द कंटेंट एंड अटैचमेंट एनालिसिस टूल। ये क्या है? सो कंटेंट एंड अटैचमेंट एनालिसिस टूल का मतलब होता है कि जो ईमेल में एम्बेडेड लिंक्स होती हैं, अटैचमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर है ना, मिलीशियस पेलोड के, तो उसको हम दैट मींस एनालाइज करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो इसको हम यूज करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, virustotal.com पे चले जाते हैं, वायरस टोटल। ठीक है, यहाँ पे ये पैनल है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप इसको लिंक भेज दूंगा, आपको ये खुद फाइंड करना है गाइज। I cannot show you because it is very easy. You need to just put the URL here. You need to put the any file, then you can know about that, means any suspicious things. ठीक है, मैं I'm just pasting it. That means so that you can understand by your own. Okay. I am not exploring it. अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, बट अभी आपको ये खुद से करना है गाइज, इट्स योर होमवर्क। ठीक है, सो नाउ we move to the another slide guys. Now we are who is footprinting guys. What is who is footprinting? Actually I already shown you, that means in a, that means next, that means previous class, who is footprinting. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, who is footprinting हम कैसे करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं एज अ, that means through the command, so I am just using, you need to do the same और नो, इसमें आपको क्या मिलेगा, उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि उसका डोमेन ऑनर कौन था, रजिस्टर कब था, डेट कब थी उसकी। ठीक है, लाइक दिस, मतलब आपको होल डिटेल्स इसमें मिल जाएगी हु इज कमांड में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये करना है हु इज। ठीक है, एंड देन विद्यांत इन्फो सिस्टम, विद्यांत इन्फो सिस्टम्स .com, लाइक दिस। ऐसे करके आप जैसे डालोगे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे आपको मिल गया, ये सब चीजें रखिए, रजिस्ट्रार कब था, इसका डोमेन नेम क्या था, ये क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो लाइक द सेम, तो आप इसका क्या यूज कर रहे हैं, इसमें भी ये लिखा हुआ है, हु इज फुटप्रिंटिंग इज द प्रोसेस टू गैदरिंग डिटेल्स अबाउट द डोमेन एंड इट्स ओनरशिप। ठीक है, कि उसकी ओनर की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हुई फुटप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिसमें हम किसी डोमेन या नेम को, जैसे example.com, जैसे मैंने अभी आपको बताया विद्यांत इन्फो सिस्टम को, ओनर डिटेल्स, रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का निकालते हैं, डेट मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में निकालते हैं। ठीक है, नाउ टेक्निक्स फॉर हु इज फुटप्रिंटिंग।
ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल हमें मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाती है ना, नेम सर्वर्स मिल जाते हैं और डोमेन हिस्ट्री मिल जाती है, लाइक द सेम। सो हमें यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स मिल जाती है जिसमें हम क्या कहते हैं थ्रू द कमांड यूज कर सकते हैं। नाउ हु इज लुकअप इज द प्रोसेस टू क्वेरिंग द हु इज डेटाबेस, ठीक है, विच कंटेन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन about the domain IP and IP address. You can just use the who is tool also. So it is also a tool you can use, है ना। ये भी सेम ही डेटा प्रोवाइड कराएगी गाइस जो हम आपने कमांड में देखी है, बस इसको आप विजुअलाइज मैनर में देख सकते हैं। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट सर्च एंड यू कैन जस्ट सर्च विद द यूआरएल एज वेल, कि यहाँ पे आपको यूआरएल से भी सर्च मिल जाएगा रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया डोमेन नेम ये रहा, ठीक है। तो मैं आपको ये भेज रहा हूँ यूआरएल, यू नीड टू जस्ट सर्च इट बाय योर ओन, ठीक है। मिनट, आप इसे सर्च कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, आई विल कवर इट अवर नेक्स्ट दैट मींस क्लासेस। नाउ वी हैव अ डीएनएस फुटप्रिंटिंग गाइस। डीएनएस फुटप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनएस फुटप्रिंटिंग मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? इन इजी वे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट मींस डीएनएस फुटप्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन डोमेन नेम सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला इसने कि डीएनएस फुटप्रिंटिंग को एकदम सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो इसका एग्जांपल जैसे कि आप इजीली अपनी क्लास में एक्सप्लेन दैट मींस बता सकते हो अगर किसी को भी बताना चाहो, ठीक है। सो मैं बता रहा हूं व्हाट डीएनएस इज फुटप्रिंटिंग इन इजी वे। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, फुटप्रिंटिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेबसाइट के बैकएंड ये डीएनएस रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, मेल सर्वर हो गया, या फिर नेम सर्वर हो गया। मेल सर्वर को हम एमएक्स बोलते हैं, नेम सर्वर को एनएस बोलते हैं। फिर उसके अंदर सब डोमेन हो गया, या टीएक्सटी रिकॉर्डर हो गया, या फिर जोन ट्रांसफर हो गया, अगर पॉसिबल है तो मिल जाता है कभी कभी। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हम इसको क्यों जान रहे हैं? क्योंकि डीएनएस के थ्रू हम किसी भी टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क स्ट्रक्चर समझने में, मेल सर्वर को आइडेंटिफाई करने में, या वनरेबल आइडेंटिटी को ढूंढने में कि इसके अंदर क्या वनरेबल है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कमांड की इसकी, तो इसके लिए इजी कमांड हम जो यूज कर सकते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू, यू कैन जस्ट यूज दैट कमांड आल्सो, nslookup.com, nslookup.com like this, nslookup.com, that means nslookup, and just you need to put the url vidyantinfosystem.com and hit enter, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल गया गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल गया, आप इसका और ये भी पता चल गया कि ये कौन सा मतलब डोमेन यूज कर रहा है, एनएक्स डोमेन यूज कर रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस, सो आपको यहाँ पे डिटेल्स ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप एनएस फुटप्रिंटिंग इज क्लियर, दैट मींस डीएनएस फुटप्रिंटिंग। नाउ टूल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग डीएनएस इंफॉर्मेशन। सो एनएस लुकअप डोमेन और डिग, दैट मींस एनएस लुकअप टूल, एनएस lookup, you can search by own, I think here it is as lookup tool, actually it was comes to the safety. So actually my that means quick heal, that means is working, quick update, so that is why it was not working. So you can search by the DNS, that means DNS dumpster like this, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ना जाके आप एक थ्रू द कमांड जा सकते हैं, जो मैंने कमांड बताया, बिकॉज वो सेम ही डिटेल्स बताती है। सो इन एनएस लुकअप में डोमेन और डिग डोमेन, दैट मींस डोमेन का नेम बताती है। डिग कमांड भी वी कैन यूज। अगर हम विद डिग कमांड की बात करें, डिग कमांड कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू आल्सो। डिग कमांड इफ आई एम यूजिंग, देन आई एम यूजिंग डिग, dig dig, and then I'm just put any, that means URL Vidyant Infosystem, Vidyant Infosystems system.com like this, and we are using any ANY, ठीक है, and hit enter. Now what I'm getting result, I'm getting the lots of result here, ठीक है। सो ये सब चीजें भी हम यूज कर सकते हैं एनएस लुकअप के बजाय विद्यांत इन्फो सिस्टम के डिग कमांड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये चीज भी बोल रहा है, हार्वेस्टर कमांड भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। डीएनएस एनएम इज आल्सो अ कमांड, mx toolbox is also a that means command, mxtoolbox.com like this. I'm also sharing, that means URL of this. You can just put the any, that means domain name here, just an example bizlearning.com, vidyantinfosystem.com, then you will get the result from there. I am pasting the link, you can search by your own and tell me if you getting any, that means error. Okay, so I'm just going with my slide now. I'm just going with the network footprinting guys. What is network footprinting? Network footprinting क्या होता है?
nmap, as just I am saying nmap. So if you are doing nmap, so it comes to the network footprinting, because you are going to, that means gathering the information about the network. So a network footprinting, एक तरह का, अगर आप कोई information gather कर रहे हैं through a target of network, it comes to the network footprinting. just an example nmap, ठीक है. So network footprinting होता क्या है? नेटवर्क फुटप्रिंटिंग का मतलब है किसी टारगेट या नेटवर्क के डिवाइस आईपी एड्रेस को, पोर्ट सर्विसेज को और टोपोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बिना टारगेट को अलर्ट किए. ठीक है. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें हम आईपी की रेंज निकाल सकते हैं, लाइव सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा होस्ट ओपन है कौन सा नहीं है. ठीक है. और इसके बाद क्या हम कर सकते हैं? इसके बाद हम नेट, दैट मींस ओपन पोर्ट्स को, रनिंग सर्विसेज देख सकते हैं, और हम नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को समझ सकते हैं. ठीक है. ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, अगर मुझे देखना है, क्या कहते हैं, जैसे कि मुझे विद्यांत इन्फो सिस्टम के पोर्ट नंबर को देखना है, देन व्हाट आई कैन यूज द nmap command, just nmap. ठीक है. then I can use sv, v as a capital. ठीक है. then I can use the vidyantinfosystem.com, vidyantinfosystems.com, infosystem है .com. ठीक है. and hit enter. here it is going to, that means scan. ठीक है. zero host up like this. ठीक है. and I can also use some, that means nmap also, that means command as well. I can show with the, that means IP एड्रेस एज वेल. अगर मेरे पास IP एड्रेस है तो मैं उससे भी सर्च कर सकता हूँ. ठीक है. IP एड्रेस फाइंड करने के लिए मैं id serve डॉट को, दैट मींस id serve मेरे पास है. अगर इसको आपका लिंक चाहिए होगा, मैं ये भेज देता हूँ id सर्वर का, id सर्वर डाउनलोड. ठीक है. ये है आईडी सर्वर. इससे आप क्या करेंगे, किसी भी आईपी का, जस्ट मींस आप आईडी आईपी एड्रेस मांग सकते हैं, मतलब देख सकते हैं. यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है गाइस, यहीं कहीं, ये रहा डाउनलोड ना, यहाँ पे क्लिक करके आपका डाउनलोड हो जाएगा और ये डायरेक्ट काम करने लग जाएगा. मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको शो भी कर देता हूँ कैसा होता है ये, कैसे आप आईपी एड्रेस निकाल सकते हो किसी भी वेबसाइट का. जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ, फाइल एक्सप्लोरर, I'm going with my, that means D network ID server tool here, and here I'm open my ID server. So you need to, when you are opening, then it is comes like this. Then you need to click on server query, and यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डालना है IntelliPath, सॉरी विद्यांत इन्फो सिस्टम, विद्यांत इन्फो सिस्टम .com like this. ठीक है. vidyantinfosystem.com and then serve query. Okay. So here I'm looking at IP domain vidyantinfosystem.com. So it is just like initiating the query, and once it will open, that means done, then it will show you the result here. ओके. तो आप यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं, ये आपको आईपी एड्रेस दे देगा गाइस. ठीक है. सो आई एम नॉट यूजिंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, यू कैन जस्ट गो डाउनलोड, आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक एज वेल, सो यू कैन डाउनलोड बाय योर ओन. ठीक है. और आप स्कैन में इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लोकेट द नेटवर्क रेंज गाइस. ये क्या बता रहा है कि मतलब लोकेट द नेटवर्क रेंज कैसे, क्योंकि आप आईपी एड्रेस फाइंड कर ले रहे हैं, तो उसके क्या करेगा, ये लोकेटिंग कर देगा नेटवर्क रेंज को, जो कि इन्वॉल्व करेगा आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस एलोकेटिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटवर्क. ठीक है. सो ये क्या करता है, अगर नेटवर्क है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल आपको कोई आईपी एड्रेस मिला, तो वो आपको बता देगा कि भैया ये वाला इसका यहाँ तक का रेंज है, ताकि आप ये पूरे नेटवर्क में लाइव सिस्टम स्कैन कर सको. और फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और इन्यूमरेशन के पहले ये आइडेंटिफाई करना मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. अगर हमें आईपी एड्रेस मिल गया तो हम इजीली उसको स्कैन कर पाएंगे एनमैप के थ्रू. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन गाइस. ठीक है. नाउ वी कम टू द अनदर स्लाइड, ट्रेस रूट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये समझने की कोशिश करिएगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा एक बार में. ठीक है. मैं बता दूंगा. अगर कोई भी सिंगल डाउट है, देन गाइस प्लीज लेट मी नो, आई विल टेल यू. ट्रेस रूट एक नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल होता है गाइस, जो आपको बताता है कि आपके सिस्टम से किसी डेस्टिनेशन सर्वर, जैसे कि वेबसाइट आईपी तक डेटा किन किन राउटर से होके जा रहा है. ठीक है. ट्रेस रूट क्या होता है कि पाथ ट्रेस करता है एक पैकेट को, एक पैकेट की जर्नी का, कि कहां से आपका डेटा गया. ठीक है. आपका राउटर से गया, कहां से गया और कहां तक वो गया. ठीक है. अगर मैं काली लिनक्स में कमांड दैट मींस मेंशन करूं, तो आई कैन जस्ट यूज दैट कमांड लाइक दिस, ट्रेस रूट, TRACE ट्रेस, देन ROUT ट्रेस रूट. ठीक है. then I just use Vidyant Info System. If I talk vidyantinfosystem.com like this and hit enter. Name service is not coming. Okay, it is not coming, then we can use the google.com trace root, because our command is correct, trace root, and google.com, just hit enter. So here it is just going to, that means scan.
राइट ये स्कैन होने लग गया, गेटवे मुझे मिल गया आईपी एड्रेस, लाइक दिस इट इज गोइंग टू स्कैन. सो यू कैन यूज बाय योर ओन एंड यू कैन observe the result. And if you're not getting any result, then let me know, we will cover it over the next module, that means next class. But definitely you will get the result because I am also getting the result, you can use it. Okay, so I'm just going with the my that means module now guys. So trace route, I hope it is clear, because trace route क्या करता है, trace route आपको बताएगा, diagnostic tool है जो कि आपको बताता है आपके सिस्टम में किसी डेस्टिनेशन सर्वर या वेबसाइट आईपी के मतलब किन किन राउटर से होके जा रहा है, लाइक दिस. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ we have performed network footprinting, it will cover that means upcoming class through the that means Jatin sir, I am going to teach you over the only the theoretical part. So the footprinting through a social engineering guys. So types of footprinting through a social engineering, what does it mean? ठीक है, so it is a technique used by malicious actors or gather information about a target. ठीक है, इसकी ये इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें फिशिंग अटैक, फिशिंग मतलब जब फेक ईमेल बना के उसको भेजना, तो ये सब क्या है, फुटप्रिंटिंग का सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है. सो इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू malicious actor to gather information about a target organization or individual using a psychological manipulation of deceitful tactics. ठीक है, कि मतलब एक तरह का उसकी जानकारी लेना, उसके बारे में हमें क्या कहते हैं चीजें गैदर करना, इट्स कम्स टू द footprinting, that means it comes to the footprinting through a social engineering. ठीक है, now we have a footprinting countermeasures. what does it mean, footprinting countermeasures? ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह लिमिटेड पब्लिक एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन और एक मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि ये क्या करता है, फुटप्रिंटिंग काउंटर मेजर्स मतलब क्या है, कि एक तरह का ये फर्स्ट स्टेप होता है हैकिंग का, जहां पे अटैकर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को टारगेट के बारे में जानता है और उसको सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है उस इस मेजर की तरह, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी. ठीक है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे करेगा, यूज अ फायरवॉल. ठीक है, फायरवॉल का यूज करेगा, फिर डिसेबल अनयूज सर्विसेज, जो हमारी सर्विस काम की नहीं है उसको डिसेबल करेगा. हाइड हुईज इंफॉर्मेशन, जो हुईज इंफॉर्मेशन ऐसे हमें प्रोवाइड हो जाती है डोमेन की, वो उसको हाइड करेगा. डीएनएस जोन ट्रांसफर को खत्म करेगा, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देगा कि कोई भी फिशिंग इस पे क्लिक मत करो. ठीक है, जो एक्सेसिबल पब्लिक इंफॉर्मेशन है, दैट मीन जैसे हुईज उसको वो हाइड कर देगा. मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग करता रहेगा कि भैया कोई सस्पिशियस थिंग्स तो नहीं चल रही है, और उसको इंसिडेंट रिस्पांस प्लान की, कोई भी सस्पिशियस थिंग दिखे उसको इंसिडेंट रिस्पांस दो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, लाइक दिस. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस. सो वी आर जस्ट दैट मींस एंड अप आवर टुडेस दैट मींस मॉड्यूल 2.